Okay, students, welcome you all in welcome all you in today's session. Let's start. We were discussing about the paragraph formatting, in which we are applying the border around a paragraph, right? I told you that first of all we typed a paragraph, and after that we have to select it like this and go in home tab. It is by default tab, and choose paragraph group and choose this border option. After that, click on it and choose the last option, that is borders and shading. When you click on it, you will get another dialog box, and choose any option from there. If you don't want to apply any border around it, choose none and OK button like this. It means we don't want any border, but if we want it, then go to again the same on the same option, border and shading. First option is box. Then you can see the preview like this. If you select hashed border around it, you can see the preview. Okay, so you can just the output of it. We have so many options. You can change colors as well. If you like red color, then you can choose and you will see the same in your preview window. This is size. According to it, you can change the width of the border. Apply. Now you can observe a beautiful border you will find around your text, right? Then next option is, and one more thing I want to share, that it is not compulsory that you have to apply a four-side border. If you want to remove from the top and bottom, then you can off these buttons and click OK button. Look, according to your requirement, you can change the command. Okay, beta. Now we will move on our next command. दिस इज पेज बॉर्डर. अभी आपने सीखा कि एक पैराग्राफ बॉर्डर को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि पूरे पेज के ऊपर, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर हम किस तरह से ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are in the same page and page layout option. Click on page layout tab, and from there you can choose the option page border. Just wait. Now we will apply page border. From where we will get it? On the same command, borders, then border and shading, and the second tab is for page border. तो वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिलने वाली हैं. वो सिर्फ पहले वाला पैराग्राफ से रिलेटेड था और ये हमारा पूरा पेज से रिलेटेड है. अब आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन इसके अंदर यूज कर सकते हैं. कलर ऑल्सो यू कैन चेंज. सपोज दिस टाइम वी वांट टू अप्लाई ब्लू कलर. Apply to paragraph, sorry, again choose it, border, style change किया है, color blue color, and ये देखो यहाँ ऑप्शन है whole document, this session first page only, this session all except first page. ठीक है, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी पेजेस आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, उन सब पेजों पे ये बॉर्डर्स आ जाएंगे अपने आप.
दिस सेशन सिर्फ जो एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा जस्ट लाइक पैराग्राफ उस पे आ जाएगा। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, कि अगर इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर मोर देन वन पेज आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर साथ में ही सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर बॉर्डर आएगा, बाकी बॉर्डर नहीं आएगा। और इसका उल्टा अगर आपने करना है कि ऑल पे आ जाए लेकिन सिर्फ फर्स्ट पे ना आए, तो ये वाली ऑप्शन है। तो हम कर देते हैं होल डॉक्यूमेंट और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूं सो दैट यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजीली। लुक स्टूडेंट्स, यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल बॉर्डर। जो ऑप्शन आपने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग इस सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गई है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसमें एक नया पेज बना देता हूं तो ये देखिए नया पेज बनते ही वो बॉर्डर और वो सेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमने ऑप्शन क्या लिया हुआ है, होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये दो कमांड हमारी अब की बार पेंडिंग थी। इसके अलावा एक कमांड और है, दैट इज प्रिंट कमांड। इफ यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट and the printer is attached with your computer, then you can take the print out very easily. Go on file option, then print. उसके बाद ये देखिए साइड में प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, यहां पर इसको आप इनलार्ज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लाइक दिस, ठीक है। और अब आप देखिए यहां पे बोलता है कि ऑल पेजेस इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपको स्पेसिफिक पेज चाहिए, जैसे वी हैव टू पेजेस हियर, पेज 1 एंड पेज 2, एंड यू वांट टू प्रिंट ओनली वन पेज, तो पेजेस के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे वो रेंज आप डाल देंगे। कई बार क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा पेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मान लीजिए इसमें 5 पेजेस हैं टोटल, तो इस 5 पेजेस के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 लाइक दिस, यानी 1 से लेकर 3 तक, यानी 4 और 5 पेजेस नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें इवन नंबर में या ओड नंबर के अंदर पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए होता है, यानी बीच बीच में हमें छोड़कर पेजेस चाहिए। तो मैंने किया 1, 3, 5 इस तरह से, और 5 के बाद मुझे चाहिए 6 भी 7 भी, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 5 to 7, और भी आगे चाहिए कोमा लगाओ 9। यानी अगर एक पेज अलग से देना है तो कोमा, और अगर एक रेंज देनी है तो आप बीच में ये 2 साइन जो होता है, ये वाला साइन 2 साइन, ये आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने प्रिंटर को कमांड दे दी कि पहले पेज नंबर 1 प्रिंट कीजिए, फिर 3, देन 5, 6, 7 एंड देन 9। तो ये जो कमांड आप दे देंगे कंप्यूटर उसी हिसाब से प्रिंट आउट आपको दे देगा, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शंस हैं आपके पास। कई बार आपके पास कुछ ऐसा प्रिंटर होता है जो बोथ साइड कैन प्रिंट, दोनों तरफ पेज के प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस है, देखो, प्रिंट वन साइडेड, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, कि एक बार एक पेज का प्रिंट आपने दे दिया तो एक पेज प्रिंट आउट होके बाहर आ गया, तो प्रिंटर विल वेट फॉर योर अनदर एक्शन। आप क्या करेंगे, उस पेज को उठाएंगे, उसको आप उल्टी तरफ करेंगे जिस साइड ब्लैंक है, और दोबारा से प्रिंटर में इंसर्ट कर देंगे, और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तब वो दूसरी साइड पेज को प्रिंट कर देगा। तो ये ऑप्शंस हमारे पास होता है। फिर है यहाँ पे कॉलेटेड क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपको एक ही पेज की ज्यादा कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1 कॉपी इज बाय डिफॉल्ट, अपने आप एक ही कॉपी आएगी। यू कैन इंक्रीज द नंबर और डिक्रीज एज वेल, राइट। तो आपने मान लीजिए कर दिया 2, तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन लेते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए, एक तो है कॉलेटेड और एक है अनकॉलेटेड। कॉलेटेड के अंदर तो क्या है कि पहले पेज नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एक कॉपी हो गई, मान लीजिए 3 ही पेजेस हैं, या फिर ये जो सीरीज आपने दी हुई है, एक बार तो पूरे पेजेस निकलेंगे, उसके बाद फिर दूसरी कॉपी में सेम पेज निकलेंगे, यानी एक सेट आपको बना बनाया मिल जाएगा। आपको सिर्फ इसको उठाना है और स्टेपल करके अपनी फाइल में लगा लेना है, राइट। और अगर आप इसमें ये ऑप्शन डाल देते हैं अनकॉलेटेड 1 1 1, फिर आपके पास कैसे प्रिंट आउट आएगा, जैसे पहले आपने डाला पेज नंबर 1, तो 1 1 1, अगर या ये 2 कॉपी हैं तो 1 1, फिर 3 3, 5 5, 6 6, 7 7, 9 9, इस तरह से। लेकिन इस तरह प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको सभी पेजेस को अलग करके फिर सेट अपने आप आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको स्टेपल करना पड़ेगा। तो बहुत सी ऑप्शंस के अंदर ये यूजफुल होता है, बहुत सी ऑप्शन के अंदर ये यूजफुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको पेजेस को अलग अलग ही स्टेपल करके देना है, तो आप करेंगे अनकॉलेटेड, और अगर आपको पूरा सेट
इसका प्रिंट आउट करके देना है, देन यू विल चूज कोलेटेड। ठीक है, ये आपका पेज साइज है, लेटर साइज A4, A3, देयर आर लॉट ऑफ पेज साइजेस, यू कैन चूज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये मार्जिन वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी रीड किया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीपली जाने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। तो ये है आपका पेज सेटअप। और भी अच्छे से देखना है तो ये वही चीज़ आ गई, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, गटर, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग इट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है, ये सारी ऑप्शंस डाल के और प्रिंट कमांड दे देनी है। जैसे प्रिंट कमांड देंगे तो यूर प्रिंटर विल गिव यू आउटपुट अकॉर्डिंग to your command. Clear? So we are moving on next lesson now. From my side, this lesson is over. If you face any problem in practical, then you can contact me anytime. You all have my number. You can contact me on WhatsApp as well. Now the third part of this MS Word 2010 lesson is we will cover only introduction today. Okay, अब हम इसके अंदर कैसे इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, फॉर दैट आई एम टेकिंग अनदर न्यू फाइल, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। बहुत आसान है ये, आप तकरीबन 3-4 साल से लगातार ही कमांड करते आ रहे हैं, क्योंकि होम कमांड हमारी हो गई। अब हम जा रहे हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में ये सारी चीज़ें आपने इंसर्ट की हुई हैं विद अ वेरी क्विक व्यू। आई एम गोइंग टू शो ऑल द कमांड्स, प्लीज be attentive. First is table. यहाँ से जितने भी बॉक्सेस आप सिलेक्ट करेंगे यू विल फाइंड द प्रीव्यू के साथ साथ मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मूविंग द माउस एरो। ओके, तो जितना भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जहाँ ओके लगे क्लिक कर दो। इस तरह से आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाती है। आई एम रिपीटिंग, गो ऑन इंसर्ट टैब, देन चूज टेबल ऑप्शन and select the cells according to your need. क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। I hope it is quite simple. Next option, this is picture. You can select any picture from your computer memory or storage. Click on it and insert. You will get the picture, and when you get the picture you will have 8 points to reduce, enlarge, resize, everything, rotate. ये सारे ऑप्शंस के लिए आपके पास 8 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ से आपको हाइट और विड्थ के अंदर दोनों में सेम अगर पिक्चर को रिड्यूस करना है, देन यू कैन यूज 4 कॉर्नर्स बटन। और जब आप इसके ऊपर जाते हो तो यू विल नोटिस दैट द एरो ऑफ माउस ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू 2-headed एरो। जैसे मैंने इसको इनलार्ज किया तो ये विड्थ और हाइट दोनों में सेम इनलार्ज हो रहा है। लेकिन ये जो बीच के कुछ बटन्स हैं आपके पास 4, ये बटन्स आपके इसको रिसाइज तो करेंगे लेकिन दोनों तरफ से सेम नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या किया, आपकी बार इसकी विड्थ वाइज इसको रिड्यूस कर दिया, हाइट वाइज आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हो आप। जैसे आपने इसको उठाया और इससे पहले आप क्लिक कीजिए, और जैसे जैसे आप एंटर करेंगे यू विल गेट पिक्चर इज मूविंग। टैब बटन दबाएंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा, वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं भी आप कर सकते हैं। और कोई भी चीज जो मैं इंसर्ट यहाँ पे करने वाला हूँ उसके अंदर आप टोटल ग्राफिक ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, उस जो भी इंसर्ट होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे यू विल गेट अनदर टैब दैट इज फॉर्मेट। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जब मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ व्यू तक ही ऑप्शन आ रहा है, यानी होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सिर्फ इतने ही टैब है हमारे पास, 4 और 4 8, राइट। तो बाय डिफॉल्ट वी हैव 8 टैब्स इन MS Word. When you double click on it you will get another tab that is format.
ये उसी वक्त हाईलाइटेड होगा, विजिबल होगा, अपीयर होगा जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप जो मर्जी चाहें ऑप्शंस ले सकते हैं और उसका प्रीव्यू आपको साथ साथ नजर आना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दोगे मोर बटन पे, तो यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस इन अ सिंगल विंडो, राइट। तो जैसे मैंने ये कर दिया, मुझे ये ऑप्शन अच्छी लगी तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखो ये चेंज हो गया है, राइट। तो बहुत ही आसान सी और इंटरेस्टिंग सी कमांड्स हैं इसके अंदर। तो कोई भी पिक्चर आप उठाइए, उसको इंसर्ट कर लीजिए और डबल क्लिक कीजिए और कोई भी ऑप्शन आप इसमें लेके और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज में थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली लाइक दिस, ठीक है बेटा। इसको डिलीट करना बहुत आसान है, क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन दबा दो very easily. Next option is shapes. बहुत ही आसान है, बहुत सारी शेप्स मिलेंगी, कुछ भी ड्रॉ आप कर सकते हैं। मान लीजिए बॉक्स मुझे पसंद आ गया, इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट कलर इसके अंदर होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे इसको ड्रॉ करोगे तो इस पर जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो फॉर्मेट ऑप्शन अगेन वहाँ पे आ जाएगा और कोई भी कलर आपको चाहिए कलर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट करके इसमें लिख भी सकते हो इस तरह से। उसका भी साइज इंक्रीज कर सकते हो, ये ऑप्शंस यहाँ से ले सकते हो होम पे जाके और इंक्रीज साइज इसको सिलेक्ट करने के बाद, राइट। तो सारी की सारी वही कमांड्स हैं जो आपने 5th से लेके और 8th तक ऑलरेडी की हुई है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन हो जाती है आपकी MS वर्ड को लेके, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल के अंदर था, ऐसे ही पावर पॉइंट और ऐसे ही ये वर्ड, राइट बेटा। तो इसमें हो गया इंसर्ट, फिर है शेप्स हो गया, फिर है स्मार्ट आर्ट, बहुत सारे बने बनाए टेबल्स आपको मिलेंगे। जब आपको कुछ इस तरह की ऑप्शंस चाहिए, लिस्ट ऑप्शन चाहिए, सर्कल चाहिए, ऑल में ऑल आ जाएगा सारा, जो आपको ऑप्शन चाहिए उस पर ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए और ओके। ये देखो बहुत ही ईजिली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है क्लिक करके जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इसको अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है तो इसको डबल क्लिक करो, बॉर्डर पे जाके ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उसको चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सारी ऑप्शंस हैं, मान लो ये आपको चाहिए ये हो सकता है, ये चाहिए ये हो जाएगा, ये देखो ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से किस कलर में कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो सकता है, ये देखो। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। कंप्यूटर इज गिविंग सो मेनी ऑप्शंस टू अस, ठीक है। ऐसे अब की बार कितने आ गए हैं, ये 2 आ गए हैं इसके अंदर, एक डिजाइन आ गया है और एक फॉर्मेट आ गया है। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, दीज आर कॉमन फीचर्स, यू कैन try by yourself. So I am ending this meeting here and I would like to ask if there is any problem regarding today's lesson, you can ask me. Students, please let me know. Is there No, sir. Yes. Is there any problem, beta? No, sir. Okay, so please be muted because I am going to take the attendance of your class.